current videos we are using the XLOOKUP and pivot table in place of VLOOKUP, and with the help of these functions we are getting the information of five types from this respective data. So here we have a multiple sheets like sales data, employee data, department data, and attendance, and on the base of this we will get the information of 5 which are query we have already written down. So without wasting our time, we are start our video now. So our first query is in sales data we use the VLOOKUP to bring the employee name from the employee's data using employee ID. So how we will use, first of all, this is the data, got it, in which we have mentioned the sales ID, order ID, employee ID, product ID, quantity, unit price, sales amount, and on the base we will fill the 2 columns on the base of respective sheets. So let's start. First we will fill up the H column like department. For department we will check the common column in this data. So we will check the second sheet in which we get the information of employee data, and third sheet that is a department data, and fourth is a attendance data. So in sales data we require the department, so we can get the department detail from this sheet that is a department, and the common column will be the employee ID, got it. So on the base of employee ID we will get the department and employee name both in the same time. So first of all we start with department wise. So we write down the VLOOKUP formula, tab, select the exact cell, then comma, then select the criteria where we will found the detail like employee ID. We have to click column A. After that we will select the column from where we can get the result, so that is column D. So select the D and we can close this bracket and enter. So you can see the result has been found, and when we copy this and select the right column, left hand column, control down and then control up and control D, the whole data and formula will be copied in that. Control C to collect this, control C and control V, that is paste spacer. One second, that is freezed now. Yes, got it. Control C, control V, control as a value, so that formula can be removed, got it. So now formula has been removed from this column. Now we will get the second query, that is a employee name. So to get the employee name we use same formula again, XLOOKUP, tab, select the employee ID, actually select the employee cell, comma, then employee data, move to employee data, select the employee ID again, comma, the result cell, that is a employee name, that is column B, then enter. The result has been found, Rahul Verma. So we will copy the same data till the end of the cell. Once the complete data has been found, copy all the data and save as a value. Got it? So now your formula has been removed and you get the answer from them. So as per this, we have resolved 2 queries out of 5. First one has been done and second one is also done. Got it?
Next, create sales, total sales by department. So here we are using the pivot table. So to using pivot table, first of all we go to the sales data, select whole data from control shift arrow right and arrow down, then move to insert, click to pivot table, and here you have a two option, न्यू सीट एंड एग्जिस्टिंग सीट. न्यू सीट मीन्स एक नए सीट पे कॉपी कर देंगे, या फिर एग्जिस्टिंग अगर आपके पास ऑलरेडी कोई सीट है और उसी में आप पेस्ट करना चाहते हैं तो दैट इज़ अ एग्जिस्टिंग वन. सो हमें यहाँ पे न्यू सीट चाहिए, हम न्यू सीट क्रिएट करेंगे. गॉट इट. तो फर्स्ट हमारा को क्या शो करना है इसमें, द फर्स्ट वन इज क्रिएट पाइवट टेबल इन विच वी विल शो टोटल सेल्स बाय डिपार्टमेंट. तो डिपार्टमेंट वाइज सेल्स हमें शो करनी है. ठीक है, तो हम यहाँ पे जाएंगे डिपार्टमेंट वाइज सेल्स. सो सेलेक्ट डिपार्टमेंट फर्स्ट इन रो कॉलम एंड सेल्स अमाउंट विल बी इन अ वैल्यू फॉर्म. तो सेल्स अमाउंट को आप वैल्यू वाले पॉइंट पे पेस्ट कर दीजिए. हेयर यू गेट दी आंसर डिपार्टमेंट वाइज सेल्स. कि कस्टमर सेल्स में आपको कितना सेल हुई है, फाइनेंस में, HR, IT, मार्केटिंग, ऑपरेशन, प्रोक्योरमेंट एंड सेल्स डिपार्टमेंट. सो दिस आर द टोटल अमाउंट. नेक्स्ट हमारी सेकंड ये क्वेरी हमारी रिजॉल्व हो गई. नाउ वी मूव द फोर्थ वन, द सेल्स अमाउंट बाय एम्प्लॉय. सो एम्प्लॉयज़ के बेस पे हमें सेल्स अमाउंट शो करनी है. तो हम डेटा में जाएंगे, एम्प्लॉय नेम हमने फाइंड आउट कर लिया था एक्स लुकअप से. तो एम्प्लॉय के बेस पे हमें सेल्स को अब शो करना है कि किस एम्प्लॉय ने कितनी अमाउंट कितनी सेल करी है. तो हम बार बार दोबारा उसी डेटा को सेलेक्ट करके पाइवट टेबल बनाने के बजाय हम दोबारा इसी को कॉपी और पेस्ट कर लेंगे ताकि एग्जिस्टिंग फार्मूला हमारा यूज़ हो जाए. अब हमें क्या करना है, जो डिपार्टमेंट की सेल्स, डिपार्टमेंट वाइज सेल्स दिखाया है उसकी जगह पे हमें अब एम्प्लॉयज़ वाइज सेल्स दिखानी. तो हम एम्प्लॉय को उठा के यहाँ पे रो में पेस्ट कर देंगे. लीव इट, बस एरर हो रहा है. हम चाहें तो इसी वाले पे हम दिखा देते हैं दोबारा दिखाने के बजाय. तो हम यहाँ पे डिपार्टमेंट जहाँ पे शो कर रखा है हम एम्प्लॉय नेम को कॉपी कर देंगे एंड यहाँ पे पेस्ट कर देंगे. सो वी विल गेट द सेल्स अमाउंट ऑन द बेस ऑफ एम्प्लॉयज़. सो हेयर वी हैव क्लोज द थर्ड क्वेरी. नाउ वी विल मूव टू लास्ट वन, अटेंडेंस स्टेटस बाय डिपार्टमेंट. तो इसमें हम डिपार्टमेंट वाइज अटेंडेंस स्टेटस शो करेंगे. तो इसके लिए हमें एम्प्लॉय डंप में जाना होगा. ठीक है, जहाँ पे हमारे पास एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट लोकेशन, एनालिसिस दैट इज अ डेजिग्नेशन एंड मंथली सैलरी मेंशन्ड है. और एक और सीट है जिसमें हमारे पास एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट आईडी, अटेंडेंस सीट और स्टेटस मेंशन्ड है. बट हमारे पास यहाँ डिपार्टमेंट नहीं है. ठीक है, और हमारे को क्या क्वेरी करी गई है कि अटेंडेंस स्टेटस बाय द डिपार्टमेंट. तो डिपार्टमेंट वाइज अटेंडेंस स्टेटस दिखाने के लिए हमको इसमें पहले डिपार्टमेंट डिटेल डालनी होगी. तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम यहाँ पे अगेन एक्स लुकअप का फॉर्मूला लगाएंगे, सेलेक्ट करेंगे सेल, देन हमारा डिपार्टमेंट वाइज डेटा हमें ये वाली सीट से मिल जाएगा. हम कॉलम सेलेक्ट करेंगे जहाँ से हमें फाइंड करना है और जो रिज़ल्ट हमें दिखाना है फिर उसको सेलेक्ट करेंगे और एंटर कर देंगे. सो यहाँ हम अपना रिज़ल्ट फाइंड आउट कर लिए हैं कि ये कस्टमर सपोर्ट का डिटेल है. अब हम इसी फॉर्मूले को एंड एट द एंड ऑफ सेल वी विल पेस्ट दैट. वंस इट इज़ completed, copy that complete row, complete column and paste it as a value. So this is completed. So अब हमें पाइवट टेबल यूज़ करना है इस वाले शीट पे. सेलेक्ट करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सेलेक्ट ऑल द टेबल, ऑल सेल्स एंड रोज
and columns, we will select on that, then move to insert option, pivot table. If you have existing one, you can use that. If no, then we will use the new sheet. तो यहाँ पे हमारे पे न्यू सीट की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमारे पास एग्जिस्टिंग सीट ऑलरेडी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एग्जिस्टिंग सीट पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट डाटा रेंज सेलेक्ट करेंगे, फिर हम पाइवट टेबल 2 में जाएंगे, यहाँ पे ये वाली रो सेलेक्ट कर लेते हैं एंड ओके कर देते हैं, गॉट इट, डन। तो यहाँ पे पाइवट टेबल आ गई है। अब हमें डिपार्टमेंट वाइज उसका स्टेटस शो करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिपार्टमेंट को कॉपी करेंगे एंड पेस्ट करेंगे रो में, और उसके स्टेटस को हम शो करेंगे अगेन रो में। तो यहाँ पे स्टेटस वाइज हमारे को डिटेल आ गई डिपार्टमेंट वाइज उनके स्टेटस की। और अगर हम चाहते हैं कि इसमें हमारे को नंबर ऑफ काउंट भी दिखेंगे, कितने स्टेटस पेंडिंग है और कितने लीव पे हैं, कितने प्रेजेंट है, तो हम स्टेटस को वैल्यू वाले पॉइंट पे पेस्ट कर देंगे एंड देन वी गॉट द कंप्लीट आंसर। सो ऑन द बेस ऑफ दिस वी हैव कंप्लीटेड ऑल 5 टास्क, जिसमें हमने पाइवट टेबल और एक्स लुकअप का यूज़ किया है, और हमारे 5 सारे टास्क कंप्लीट हो गए। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो। ऐसी और वीडियोस के लिए आप लोग हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और किसी भी हाल में इसको मिस मत करिएगा, क्योंकि दिस इज़ नॉट फॉर एनी स्पेसिफिक पर्सन, दिस इज फॉर ऑल द पर्सन हु आर यूजिंग द एक्सेल इन देयर डे टू डे लाइफ। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और कलीग या फिर आपके साथ वाले पर्सन के काम आ सकती है, तो इस वीडियो को आप उनके साथ शेयर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।